Hello students, I Abhay Kumar going to solve the problems of the book Concepts of Physics written by S.C. Verma. It is part 8 of the chapter 29 Electric Field and Potential, and problem to be solved in this part are from question number 56 to question number 61. In the last part, that is part 8 of this chapter, I have solved the problems from question number 50 to 55. Starting from question number 56, which is an electric field of 20 Newton per second exists along the x-axis in a space. Calculate the potential difference Vb minus Va, where the points A and B are given by a small a is equal to 0, 0, B is equal to 4 meter, 2 meter. In B, A is equal to 4 meter, 2 meter, B is equal to 6 meter, which is x coordinate, and y coordinate is 5 meter. In C, A is equal to 0, 0, x and y both coordinate are 0, 0, that is at the origin, and B is 6 meter, 5 meter. So, now solution. Electric field is given is equal to along x-axis. E vector equals to 20, electric field is a vector quantity, 20 Newton per coulomb along x-axis है, इसलिए here I dash should be taken as unit vector indicating the direction of plus x-axis. Now we have to calculate potential difference between 2 points A and B, that is Vb minus Va. So we know that potential difference Vb minus Va equals to minus E vector dot dx vector, dr और dx यहाँ x एक्सिस के अलॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस के अलॉन्ग है, तो सो वी आर टेकिंग हेयर dx vector in place of dr vector. Dx vector, that is E is given 20 Newton per coulomb I cap, and dx is the displacement between distance between 2 points A and B, that is displacement vector. So that is it can be determined as position of B minus position of A, that is dx is 4 meter minus 0 x coordinate, माने ये पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, तो बी का पोजीशन पहले लेंगे, बी का पोजीशन कोऑर्डिनेट पहले लेंगे और ए का जो है बाद में. तो 4 माइनस 0 दोनों का पोजीशन कोऑर्डिनेट, बी पोजीशन का और ए पोजीशन का एक्स कोऑर्डिनेट को का डिफरेंस ले लिए, और ये है एक्स कोऑर्डिनेट है तो आई कैप प्लस 2 माइनस 0 वाई कोऑर्डिनेट इज 2 माइनस 0 जे कैप. This is ds vector, that is 20 I dot 4 minus 0, that is 4 I cap plus 2 j cap equals to 20 into 4. Here minus sign should also be introduced. 20 into 4 I dot into I dot, ये minus 20 plus 2, that is minus 20 into 2 I dot j dot, but I dot, a scalar product of I dot and j dot is 0. I dot j is equal to 0 because I dot n is the unit vector along plus x axis and j dot is the unit vector along y axis, and the scalar product of I dot j is equal to 0.
So this term is 0. So only we will left with minus 80 I dot I1 माइनस 20 इंटू 2 40 इंटू 0, सीधे ये 0 हो गया, 0 डायरेक्ट भी लिख सकते थे, दैट इज माइनस 80 वोल्ट. यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ पॉइंट्स बी ए एंड बी, दैट इज VB minus VA is minus 80 volt. Now we have to solve B, part B. A is 4 meter, x coordinate is 4 meter, y coordinate is 2 meter, and position of point B are 6 meter along x-axis and 5 meter along y-axis. 6 minus 5. Again, using this formula, VB minus VA in case of B, a small b, equals to E minus E vector dot dr vector dx vector. Dr is taken as dx because electric field is directed along x-axis, equals to minus E vector is 20 Newton per Coulomb dot, and ds vector here dx is 6 meter minus 4 meter, that is dot 6 minus 4 meter I cap प्लस, अब यहाँ जो है y कोऑर्डिनेट 5 मीटर एंड x कोऑर्डिनेट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ पोजिशन ऑफ पॉइंट ए इज 2 मीटर, दैट इज 5 माइनस 2 j कैप, दैट इज माइनस 20 डॉट 6 माइनस 4 2i डॉट, और यहाँ 3j डॉट i डॉट j फिर 0 होगा, तो 20 i डॉट है i कैप, 20 i कैप डॉट 2i डॉट i कैप सॉरी प्लस 3j कैप. तो वी विल लेफ्ट विथ ओनली 20 इंटू 2 दैट इज 40 माइनस 40 i डॉट i बिकॉज i डॉट j इजकल टू 0, माइनस 60 i डॉट j, तो सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा, तो केवल हम फर्स्ट टर्म ही जो सर्वाइव करेगा वो लिखते हैं माइनस 40 I dot I ही I dot I1, तो that is minus 40 volt. This is the answer of part B. Now we have to solve the final part C, that is potential difference between point B and point A, that is VB minus VA. Potential difference is the work done in taking unit charge from one point to another point between two closed points. तो यहाँ जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जा रहे हैं, तो इसलिए पहले जो है पोटेंशियल एट पॉइंट बी में से पोटेंशियल एट पॉइंट ए को माइनस करेंगे. तो नाउ वी हैव टू सॉल्व पार्ट सी, इन विच पोजिशन ऑफ पोजिशन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज 0 0, दैट इज एट ऑरिजिन, एंड एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज 6 मीटर एंड 5 मीटर. देयरफॉर वी हैव टू now C, solution of C. Potential difference between 2 points A and B is VB minus VA. We have to calculate, equals to minus E vector dot ds vector, again using the same formula, and E vector is minus E is 20 I cap dot dx is 6 minus 0, position of x coordinate of point B is 6 meter and y coordinate is 5 meter, and position x coordinate of point A is 0 and y coordinate is also 0, that is at the origin, that is 20 I dot
20 आई डॉट हो गया ई की वेक्टर की जगह, और डी एक्स की जगह वी कैन राइट 6 माइनस 0, जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, 6 माइनस 0 आई कैप प्लस 5 माइनस 0 जे कैप, दैट इज माइनस 20 इंटू 6 आई डॉट आई, और सेकेंड टर्म फिर जो है माइनस 20, ये माइनस 20 इंटू 5 आई डॉट इंटू जे, ये 5 ये हो जाएगा 6i प्लस 5j। तो इसमें जो स्केलर प्रोडक्ट कर दिए 20 इंटू 6 आई डॉट आई माइनस, आगे चूँकि माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो माइनस 20 इंटू 5 जे आई डॉट जे, आई डॉट जे इज 0, तो सो ओनली वी लेफ्ट विथ माइनस 20 इंटू 6 दैट इज माइनस 120, आई डॉट आई इजकल टू 1 दैट इज minus 120 volt, I dot j is 0. A scalar product of two similar unit vector is 0. Therefore, this is the result. Therefore, potential difference between 2 points A and B is VB minus VA. This is the answer. So, the solution of problem number 56 is completed. Now we have to solve the next problem, question number 57. Now we have to solve problem number 57 of the concept of physics, chapter 29, electric field and potential. The problem is, consider the situation of the above problem. A charge of minus 2 into 10 to power minus 4 coulomb is moved from the point A to the point B. Find the change in electric potential energy UB minus UA for the cases A, B and C. A B and C तीनों केस था प्रॉब्लम नंबर 56 में, जिसमें कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट A एंड B के बीच कैलकुलेट करना था, जिससे हमने कैलकुलेट किया था A में VB माइनस VA इजकल टू माइनस 80 वोल्ट, इन B पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA माइनस 40 वोल्ट, एंड इन C VB माइनस VA इजकल टू माइनस 120 वोल्ट, जो कि हमने अभी लास्ट प्रॉब्लम में इसको कैलकुलेट किया था। अब यहाँ एक चार्ज दिया हुआ है, नेगेटिव चार्ज, माइनस 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 कूलम। नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम नंबर 56। तो गिवन है, इट इज गिवन Q इजकल टू चार्ज माइनस 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4c। अब तीनों केस में निकालना है, तीनों केस में, ए सिचुएशन में, बी में और सी में। और ए केस में, अब ए में निकालना है, कैलकुलेट करना है चेंज इन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एंड वर्क डन इज equal to charge multiplied by potential difference, because dV is equal to work done per unit charge, dV जो फार्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, therefore work done dW upon dQ we can write, तो dW is equal to dV multiplied by dQ, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए वर्क डन पर यूनिट चार्ज V इजकल टू W अपॉन Q, फॉर पोटेंशियल डिफरेंस dV इजकल टू dW अपॉन dQ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो dW इजकल टू dV इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड dQ इज द चार्ज फॉर स्मॉल चार्ज। it can also be taken as W upon Q. So we have dW is equal to work done is equal to V multiplied by, that is dV, VB minus VA multiplied by Q. So here in this case, electrical change in electrical potential energy
electrical potential energy, that is UB माइनस UA, UB माइनस UA, चूँकि हम चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक मूव करा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में B का पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B इज UB एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A इज UA. UB माइनस UB, that is equal to work done W, and it is Q multiplied by charge multiplied by potential difference, that is VB minus VA. And VB minus VB is calculated. VB minus VA in case A is minus 80, and charge Q is minus 2 into 10 to the power minus 4 multiplied by minus 80 volt. It is minus plus 160 multiplied by 10 to the power minus 4, and we can write it as point minus 4, 4 प्लेस पर डिसमल है, 1 2 3, एक और जीरो देना होगा, 0.0160 जूल. ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज जूल. दिस इज द आंसर of part A. Now in part B, UB minus UA, that is change in potential energy between 2 points, is UB minus UA, again equal to work done, and work done is equal to charge into VB minus VB in case B. यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो है केस B में, जो कि हमने कैलकुलेट किया था, माइनस 40 वोल्ट. इसको पुट करेंगे इसमें. Q इज अगेन माइनस 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, and VB minus VA is minus 40, minus plus, that is 40 into 2 80, and minus plus 80 into 10 to the power minus 4, that is 0.0080, 10 to power minus 4 है, तो 8 के पहले 2 जीरो दे करके डिसमल देना होगा, तो 0.0080, डेट इज 0.008 जूल. आंसर. उस केस का हाफ हो गया. ए का केस में 0.016 जूल, और यहाँ जो है उसका हाफ हो गया. तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है. माने ये पहले केस बी में जो पोटेंशियल ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, वह पहले केस का 0.080 उससे जस्ट हाफ हो गया. एंड नाउ सी इज UB माइनस UA, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन केस सी इज इक्वल टू अगेन Q, सेम फार्मूला, इज इक्वल टू वर्क डन, एंड वर्क डन इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B, that is VB minus VA. VB minus VA, and charge is minus 2 into 10 to the power minus 4 into मल्टीप्लाइड बाई, एंड सी केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने पिछले प्रॉब्लम में कैलकुलेट किया था वह माइनस 120 वोल्ट. इट इज माइनस 120, दैट इज माइनस प्लस 120 इंटू 240 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, दैट इज 0.02 के पहले एक जीरो देना होगा, क्योंकि माइनस 4 है, तो 4 प्लेस पर डिसमल होगा लेफ्ट में 240, डैट इज लास्ट में जीरो हम छोड़ सकते हैं, 0.024 जूल. दिस इज द आंसर. ये इसका 3 टाइम्स हो गया, 0.008 का 3 टाइम्स हो गया, 0.024 जूल, 24 जूल. This is the answer of this problem, 0.024 joule. So this problem 57 is also solved. Now we have to solve next problem, the next problem, which is problem number 58. Now problem number 58, which is an electric field E vector is equal to 20 I cap
plus 30 j cap Newton per Coulomb exists in the space. If the potential at the origin is taken to be 0, find the potential at 2 meter, x coordinate 2 meter and y coordinate also 2 meter. Origin पर पोटेंशियल 0 है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 20I + 30J न्यूटन पर कूलम जो है एग्जिस्ट कर रहा है स्पेस में. तो पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एक्स कोऑर्डिनेट 2 मीटर पर और वाई कोऑर्डिनेट भी 2 मीटर पर. नाउ इट्स सॉल्यूशन. ई वेक्टर कैपिटल ई वेक्टर इज इक्वल टू 20I + 30J कैप न्यूटन पर कूलम एंड पोजीशन वेक्टर at x coordinate 2 meter and y coordinate at positions x coordinate 2 meter and y coordinate 2 meter can be written as r equals to xi. r पोजीशन वेक्टर को x और y कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर i कैप और j कैप और x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं. कैसे करते हैं? r कैप इक्वल टू xi कैप प्लस y j कैप. तो x इज 2 मीटर हेयर 2i कैप प्लस 2 y coordinate is also 2 j cap meter. ये at x and y coordinate 2 meter and 2 meter. For x coordinate 2 meter and y coordinate 2 meter, position vector r vector is can be written as 2i cap plus 2j cap meter. Now we have to calculate electric potential at this at 2 meter and 2 meter, x coordinate 2 meter and y coordinate 2 meter. इसी पोजीशन जो है कोऑर्डिनेट पर जो है हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो बिकॉज ई इजकल टू फॉर्मूला होता है ई इजकल टू माइनस डी अपॉन डी आर या v अपॉन आर माइनस v अपॉन आर. सो v इजकल टू माइनस ई डॉट आर, ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में. देयरफॉर वी हैव देयरफॉर v इजकल टू माइनस ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर पोटेंशियल. वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट 2 मीटर एंड 2 मीटर एंड ई वेक्टर इज गिवन -20 प्लस 20I + 30J डॉट और पोजीशन वेक्टर जो आर हो गया 2 मीटर और 2 मीटर, एक्स कोऑर्डिनेट 2 मीटर और वाई कोऑर्डिनेट 2 मीटर के लिए वह 2i कैप प्लस 2j कैप डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप. नाउ वी हैव टू स्केलर प्रोडक्ट -20 इंटू 2i डॉट आई. यूनिट वेक्टर जो है थी स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर के बीच में होगा, यूनिट वेक्टर के बीच में i डॉट आई और i डॉट जे 0 हो जाएगा, फिर j डॉट आई भी 0 हो जाएगा. तो j डॉट जे 1 होगा. तो प्लस 30 इंटू 2 j डॉट जे. इसमें 4 टर्म होगा लेकिन ये 4 टर्म होगा लेकिन i डॉट जे जो है 20 इंटू 2i डॉट जे दैट इज 40i डॉट जे 0 होगा और फिर 30 इंटू 2 दैट इज 60 j डॉट आई फिर 0 होगा. चूँकि since a scalar product of two mutually perpendicular vectors is 0. तो केवल जो है सिमिलर जो है i डॉट आई सिमिलर यूनिट वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है स्केलर प्रोडक्ट होता है 1 होता है. तो इसलिए ये सरवाइव करेगा. तो इक्वल्स टू -20 इंटू 40 i डॉट आई 1 प्लस 30 इंटू 2 60 j डॉट जे इजकल टू 1 दैट इज 60 प्लस 40 दैट इज -40 plus 60 that is 100 minus 100 potential electric potential at position 2 meter and 2 meter is -100 volt. ये आंसर हो गया. दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पोजीशन 2 meter and 2 meter is -100 volt. नाउ वी हैव टू सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 59. Now problem number 59, which is an electric field E vector is equal to I vector. Ax exists in the space
where A is equal to 10 volt per meter square. Take the potential at 10 meter, that is x coordinate 10 meter and y coordinate 20 meter to be 0. Find the potential at the origin 0 0. इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ई वेक्टर, आई वेक्टर और आई कैप ए एक्स, और ये आई कैप है, इसका मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो हम यहाँ पोजीशन जो है 10 मीटर पर देखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट भी है लेकिन हमको 10 मीटर से को कंसीडर यहाँ करना होगा। उस पर पोटेंशियल 0 है, भी है 10 मीटर एंड 20 मीटर, मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट 20 मीटर पर और वाई कोऑर्डिनेट 20 पर। तो नाउ सॉल्यूशन, ई वेक्टर इज गिवन आई कैप और आई वेक्टर एक्स, आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस, और पोटेंशियल दिया हुआ है भी एट कांस्टेंट ए का वैल्यू भी दिया हुआ है 10 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एट 10 मीटर, that is v at 10, x coordinate 10. I am taking x coordinate because the electric field is directed along x axis. v at 10 meter, x coordinate 0, v at 20 meter, y coordinate is also 0, v 0. अब पोटेंशियल हमको कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट 0 मीन्स 0 एट द ऑरिजिन, वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट द ऑरिजिन, दैट इज v 0 इज इक्वल टू व्हाट। नाउ पोटेंशियल इज इक्वल टू फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल इज v इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर डॉट dr vector. Here electric field is directed along x axis, so we have to take dx vector in place of dr vector. ds vector and e vector is given minus I cap a x dot ds vector, dx vector and a is given, the value of a is given is equal to minus a x dx x dx, पोटेंशियल डिफरेंस dv, यहाँ dv कर लीजिए, dv इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर डॉट ds वेक्टर एंड इज माइनस a x डॉट ds वेक्टर, एंड ds वेक्टर को भी लिख सकते हैं आप dx इंटू आई कैप, हेयर dx कैन बी रिटन एज x dx इंटू आई कैप, dx वेक्टर कैन बी रिटन एज dx इंटू आई कैप, dx मैग्नीट्यूड हो गया और आई कैप यूनिट वेक्टर, और आई डॉट आई इजकल टू 1, यहाँ जो है आई डॉट है तो आई डॉट आई इजकल टू 1, तो इट इज ओनली माइनस ए एक्स डी एक्स, आई डॉट आई इजकल टू 1, डी एक्स को हमने लिखा डी एक्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई कैप। नाउ इंटीग्रेट कर दीजिए नाउ, और डी वी इक्वल्स टू आपका माइनस ए एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू बाद में हम पुट कर देंगे, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेशन वी गेट डी वी इंटीग्रल डी वी एल एच एस में आर एच एस में ए इंटीग्रल के बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट है एक्स डी एक्स डैट इज माइनस ए एक्स स्क्वायर, एक्स डी एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और डी वी का इंटीग्रेशन वी हो गया, वी इजकल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये आपका इक्वेशन नंबर 2।
अब ए का वैल्यू जो है, ए का वैल्यू आपका दिया है 10 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, यहाँ रख सकते हैं। ए का वैल्यू 10 रख सकते हैं, हम रखेंगे। अब यहाँ पर अब पोटेंशियल डिफरेंस ले लेते हैं। ये तो पोटेंशियल आ गया किसी पॉइंट पर, एक्स डिस्टेंस पर पोटेंशियल भी इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर बाई 2। नाउ v at 10 माइनस v at 0, v at 10 इज, यहाँ से हम रख सकते हैं माइनस ए v at 0 हमको कैलकुलेट करना है। a का वैल्यू हो गया यहाँ 10 इंटू एक्स इज 10, एक्स कोऑर्डिनेट इज 10 स्क्वायर अपॉन 2, v at 10 हो गया। एंड v at 0 इस फार्मूला में रखेंगे 0, तो ये यहाँ 0 होगा। एक्स इज 0 दैट इज 0, और v at 10 इज 0 माइनस v0 तो हमको कैलकुलेट करना है, माइनस ये 5 हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, 10 कैंसिल हो गया 2 से, दैट इज 5, तो माइनस 5 इंटू 10 स्क्वायर दैट इज 100, एंड v at 0 यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट किए हैं इसमें, इस फार्मूला 2 के अनुसार। लेकिन प्रॉब्लम में जो भी दिया हुआ है वह v at 10 इज 0, और यहाँ v at 0 इज इस फार्मूला में पुट किए हैं। दोनों के 10 मीटर पर पोटेंशियल और 0 पर ऑरिजिन पर पोटेंशियल का देख रहे हैं, तो उसको दोनों को घटा एथी कर दिए v at 10 लेकर के, और फिर v at 0 जब इसमें पुट करेंगे x इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन के अनुसार 0 हो गया। लेकिन प्रॉब्लम में v at 10 इज 0 दिया है, तो 0 लिख दिए यहाँ, और ये 0 दैट इज, और माइनस v at 0 इक्वल्स टू माइनस 500, माइनस 0 दैट इज माइनस 500, माइनस माइनस इज कैंसिल आउट, देयरफॉर वी हैव v at 0 पोटेंशियल एट द ऑरिजिन इज 500 वोल्ट। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। पोटेंशियल एट 0 that is origin is 500 volt. Now we have to solve the next problem, which is problem number 60. Now problem number 60, which is the electric potential existing in a space is V is equal to capital A xy plus yz plus zx under bracket. In A, write the dimensional formula of A, capital A. In B, find the expression for the electric field. And C, if A is equal to 10 SI unit, find the magnitude and magnitude of electric field at x coordinate 1 meter, y coordinate 1 meter and z coordinate 1 meter. Now I am going to solve it. v is equal to उतना, पहले डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट करना है, जबकि दिया है आपका v is equal to a एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए is equal to, we can write dimension of potential V under bracket upon a can be written as v upon xy plus yz plus zx, और ये जो है x into y, that's it, x and y both are positions, x coordinate and y coordinate distance है, position है, तो पोजीशन का स्क्वायर हो जाएगा। ये जो है एल स्क्वायर, ये भी एल स्क्वायर, दैट इज डायमेंशन ऑफ एल स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ पोजीशन स्क्वायर दैट इज एल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज दैट इज एम एल टू द पावर 2 t माइनस 3 a माइनस 1 अपॉन एल टू द पावर 2 एल स्क्वायर एल का पावर 2 एल टू द पावर 2 और एल टू द पावर 2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कैंसिल हो गया। Therefore, we will left with m t minus 3 a minus 1. This is the dimension formula of A. Dimension formula of A is m t minus 3 a minus 1.
L to the power 2 and L to the power 2 will cancel out. Dimensional formula of A. Dimensional formula of A. Formula of A, capital A. A dimension of potential by dimension of, माने A हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं A इक्वल टू V अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स. एक्स एंड वाई आर पोजिशन कोऑर्डिनेट, सो पोजिशन L, इसका भी L हो गया डायमेंशन x का, y का भी L स्क्वायर, वाई जेड का भी L स्क्वायर, जेड एल का भी L स्क्वायर, L स्क्वायर L स्क्वायर L स्क्वायर, दैट इज L स्क्वायर ओवरऑल. नाउ B, पार्ट B इज फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. तो E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, देयरफॉर डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर. तो डी वी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, एंड डी वी इज गिवन ए एक्स वाई प्लस वाई जेड. तो इसका डिफ्रेंसिएशन करना होगा. डी वी इज गिवन ए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर तो कैलकुलेट ही करना है, और डी आर वेक्टर इज, डी आर को आप लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, because position vector r vector can be expressed as x I cap plus y j cap plus z k cap. Therefore here dr, so we can write it dx I cap plus dy j cap plus dz k cap. Or here differentiation of A is constant. A is constant, A can be taken out of the bracket, and d of x y, product of differentiation of product of two variable x into y, that is x dy plus y dx, x y का हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, d of x y x dy प्लस y dx. अब फिर जो है डिफ्रेंसिएशन इस टर्म का भी होगा y z का, चूँकि प्लस है तो प्रत्येक ईच फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन होगा. तो d of y z, तो y डी जेड प्लस जेड डी वाई, वाई डी जेड प्लस जेड डी वाई. अब फिर थर्ड टर्म का करेंगे डिफ्रेंसिएशन जेड एक्स का, तो जेड को कांस्टेंट रखते एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो जेड डी एक्स, और फिर एक्स को कांस्टेंट रख करके जेड का, तो एक्स डी जेड, तो जेड डी एक्स प्लस एक्स डी जेड. जेड को कांस्टेंट रख करके एक्स का करेंगे दूसरे वेरिएबल का, तो जेड डी एक्स प्लस एक्स डी जेड. तो ये डिफ्रेंसिएशन हो गया इसका, डी डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स. और इसको तो राइट हैंड साइड में ई वेक्टर डी एक्स डी वाई डी जेड डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप, डी एक्स आई कैप प्लस डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप. इट इज, एंड दिस टर्म कैन बी रिटन एज ए एक्स, यहाँ भी एक्स है, एक्स यहाँ है, फिर एक्स इसमें है, तो एक्स डी वाई एक्स डी वाई एक्स प्लस, यहाँ पर डी वाई कॉमन है तो एक्स प्लस जेड डी वाई. पहले डी एक्स का टर्म देख लें, तो यहाँ पर है वाई डी एक्स और फिर जो है जेड डी एक्स, तो वाई प्लस जेड डी एक्स, वाई प्लस जेड डी एक्स. अब डी वाई को टर्म को कॉमन करें, यहाँ जेड डी वाई और यहाँ पर जेड डी वाई और फिर जो है एक्स डी वाई, तो यहाँ पर डी वाई जेड प्लस एक्स डी वाई, एंड देन इन लास्ट डी जेड टर्म एक्स डी जेड और यहाँ पर जो है वाई डी जेड, तो एक्स प्लस वाई डी जेड, एक्स प्लस वाई डी जेड, ये हो गया इधर. और इधर जो है माइनस ई वेक्टर डॉट डी एक्स
आई वेक्टर प्लस डी वाई जे वेक्टर प्लस डी जेड के कैप आई कैप डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप और प्लस डी जेड के कैप. एंड हेयर वी कैन राइट ऑल्सो. और इधर ये माइनस उधर है ए वाई जेड वाई प्लस जेड डी एक्स, इसको भी डॉट में लिख सकते हैं. डी एक्स आई कैप डॉट आई कैप आई डॉट आई इजकल टू 1. तो वी कैन राइट इज वाई प्लस जेड डी एक्स आई डॉट आई माने डी एक्स आई कैप आई डॉट आई 1 होता है उस ढंग, माने डॉट प्रोडक्ट के रूप में इसको भी लिख सकते हैं. ए वाई प्लस जेड डी एक्स आई डॉट आई जेड प्लस जे यहाँ जे कैप, जिससे दोनों तरफ इक्वेट कर दें तो हमारा जो है डी एक्स का कोफिशिएंट वहाँ आई कैप होगा, तो यहाँ भी डी एक्स का कोफिशिएंट आई कैप होगा. तो ये डी एक्स आई डॉट आई इजकल टू 1 डॉट आई डॉट प्लस जेड प्लस एक्स डी वाई जे डॉट जे बिकॉज जे डॉट जे इजकल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई डी जेड के डॉट के इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप. नाउ we can write after this or A is constant whose value is given 10 SI unit. A y plus z dx. अब i डॉट आई 1 होता है तो इसलिए i कैप ले लें प्लस आई कैप प्लस जेड प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स प्लस जेड डी जेड वाला टर्म है इसलिए एक्स प्लस जेड के कैप डॉट, अब डी एक्स भी था, अब इसको हम डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप. तो आई डॉट आई 1 जे डॉट जे इक्वल टू 1 के डॉट के इक्वल टू 1. तो फिर इतना आ जाएगा वाई प्लस जेड डी एक्स जेड प्लस जेड प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स प्लस जेड डी जेड, जिससे कि दोनों साइड को इक्वेट करेंगे तो ई का वैल्यू मिल जाएगा. तो यहाँ पर लिख दें डी एक्स आई कैप इसका इस टर्म का, चूँकि आई डॉट आई 1 होता है तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप. अब स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो y प्लस जेड आई डॉट आई इजकल टू 1. तो y प्लस जेड दोनों के फर्स्ट टर्म को करेंगे तो y प्लस जेड डी एक्स आई डॉट आई दैट इज 1. फिर सेकेंड टर्म को करेंगे तो z प्लस एक्स इंटू डी वाई जेड डॉट जे दैट इज 1 एंड x प्लस जेड डी जेड के डॉट के इजकल टू 1. अब बाकी सब जो टर्म होगा आई डॉट जे आई डॉट के डॉट आई सब जीरो हो जाएगा. इक्वल्स टू आर एच एस में आपका ये जो टर्म है इसको माइनस ई वेक्टर डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप. अब इक्वेट कर दीजिए, इस इक्वेशन को इक्वेट कर दें, इक्वेटिंग बोथ साइड्स. तो देन डी एक्स आई कैप सेम है, ये जो टर्म है दोनों साइड में है. डी एक्स आई कैप
dy j कैप एंड dz k कैप। तो इसलिए ई वेक्टर जो होगा वह a माइनस, इट इज माइनस, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, नाउ इक्वेटिंग both sides, we get E vector equals to माइनस, माइनस इस साइड में चला जाएगा, a y प्लस जेड आई कैप प्लस जेड प्लस एक्स जे कैप प्लस x plus z k cap. This is the answer, electric field. So a y plus z I cap plus z plus x j cap plus x plus z k cap, इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये आंसर हो गया। नाउ सी पार्ट सी इज इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो गया, माइनस ए वाई प्लस जेड इक्वेट कर दिए। यहाँ पर जो है डी एक्स आई कैप डी वाई प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप है, और यहाँ भी डॉट जो है इसका ए वाला जो टर्म है अब डॉट डी एक्स आई वेक्टर आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप इक्वेट हो गया दोनों साइड में। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू दिस टर्म एल एच एस माइनस ए डी वाई प्लस जेड आई कैप प्लस जेड प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स प्लस जेड के कैप। नाउ इन सी ए इज गिवन 10 SI यूनिट, 10 SI यूनिट ए का वैल्यू है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इजकल टू 1 मीटर, वाई इजकल टू 1 मीटर एंड जेड इजकल टू 1 मीटर, तीनों पर कैलकुलेट करना है। तो देयरफॉर एक्स इजकल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, उसके बाद मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 मीटर, 1 मीटर एंड 1 मीटर इज E इजकल टू ई वेक्टर इजकल टू ए इजकल टू 10 माइनस 10 1 प्लस 1 x इज 1, x y एंड z बोथ ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स आर 1, तो 1 प्लस 1 y प्लस z, y इजकल टू 1 j इजकल टू 1 आई कैप प्लस 1 प्लस 1 j कैप प्लस 1 प्लस 1 k कैप इक्वल्स टू माइनस 10 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप इक्वल्स टू, अब 10 को अंदर ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, माइनस ये 10 को ले जाते हैं, माइनस बाहर छोड़ देते हैं, 20i कैप प्लस 20j कैप प्लस 20k कैप। इक्वल्स टू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस 20i कैप प्लस 20j कैप प्लस 20k कैप। अब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 मीटर, 1 मीटर एंड 1 मीटर, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई मॉड इक्वल्स टू रूट अंडर 20 स्क्वायर, माइनस है तो माइनस का मॉड तो प्लस ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो रूट अंडर 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, that is under root 400 plus 400 plus 400, that is 1200, 1200. Now its value is a square root, इसको we can write it 400 multiplied by 3. A square root of 400 is 20, root 3 20 is equal to 20, root 3 is 1.73.
दिस इज 34.6 न्यूटन पर कूलम, और इसको हम लिख सकते हैं नियरली इक्वल टू 35 न्यूटन पर कूलम आंसर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजिशन कोऑर्डिनेट 1 मीटर, x कोऑर्डिनेट 1 मीटर, y कोऑर्डिनेट 1 मीटर एंड z कोऑर्डिनेट 1 मीटर। तीनों पोजीशन कोऑर्डिनेट पर ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 35 न्यूटन पर कूलम, E mod इक्वल्स टू। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द लास्ट प्रॉब्लम 61 ऑफ दिस part that is part 8. Now the final problem of this part is problem 61, which is two charged particles having equal charges 2 into 10 to power minus 5 coulomb each are brought close from infinity to within a separation of 10 cm. Find the increase in the electric potential energy during the process. दो चार्जेज है, पॉइंट चार्जेज जो इक्वल चार्ज है, मतलब Q1 इक्वल्स टू Q2 जो चार्ज का सिंबल है, दोनों बोथ चार्जेज आर आइडेंटिकल, दोनों चार्ज सेम है मैग्नीट्यूड का 2 into 10 to power दैट इज Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 2 into 10 to power minus 5 कूलम, और इन्फिनिटी से लाया जाता है एक दूसरे के क्लोज 10 सेंटीमीटर पर, मतलब दोनों पहले इन्फिनिटी पर था, अब जो है उसको एक को A पॉइंट पर ले आते हैं, दूसरे को B पॉइंट पर इन्फिनिटी से, और सेपरेशन जो है उनके बीच में जो रहा 10 to the power ये 10 सेंटीमीटर। Q1 को यहाँ ले आते हैं और Q2 चार्ज को लाते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इन्फानाइट से Q1 चार्ज को जो है पॉइंट A पर, और फिर इन्फानाइट से Q2 चार्ज को पॉइंट B पर ले आते हैं, जिसके तो दोनों के बीच का जो सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर रह जाता है। तो पहले इन्फिनिटी पर जो है पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम का होगा वो जीरो होगा, और उसके बाद 10 सेंटीमीटर पर लाए हैं तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हम सिस्टम का निकाल लेंगे बाय यूजिंग द फार्मूला U12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। चूँकि इन्फिनिटी पर जीरो है पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर इंक्रीज इन the electric potential energy during the process will equal to only potential energy of two charges at separation 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस इज, चूँकि U इन्फानाइट जीरो हो जाएगा, इन्फिनिटी पर है तो R जो है चूँकि इन्फानाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो इन्फानाइट पर जीरो हो गया पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन 10 सेंटीमीटर जब उसको लाया गया 10 सेंटीमीटर क्लोज दोनों को इन्फिनिटी से, पॉइंट A पर Q1 चार्ज को और दूसरा चार्ज Q2 है जो सेम मैग्नीट्यूड का है 2 into 10 to power minus 5 कूलम। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी 1 बाई, क्योंकि इन्फानाइट पर वहाँ जीरो है, देयरफॉर इंक्रीज इन electric potential energy in the electric potential energy of the system, energy of the system is 1/4 pi epsilon naught multiplied by Q1 that is 2 into 10 to the power minus 5, Q2 is again 2 into 10 to the power minus 5, and distance is 10 centimeter which is 0.1 meter, and 1/4 pi epsilon naught is 9 into 10 to power 9 equals to 9 into 10 to power 9 multiplied by 9 10 to power 9 multiplied by एक यहाँ पर 0.1 है और 0.4 यहाँ -5 है, तो एक पावर इसका न्यूट्रलाइज हो गया, कैंसिल हो गया, तो -4 बचा। तो -4 इसमें इस टर्म में 10 to the power 2 into 10 to the power -5 और यहाँ 2 into अब -4 बचा, चूँकि 0.1 है तो एक पावर जो है माइनस पावर कैंसिल हो गया डिसमल से, एक डिसमल से। तो -5 आप -4 दैट इज -9 और हेयर इट इज +9, तो +9 -9 कैंसिल हो जाएगा। 10 का जो पावर है पॉजिटिव 9 और -5
और -4 दैट इज -9 नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो वी विल लेफ्ट विथ 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 2 दैट इज 4, 9 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -9, तो +9 -9 तो कैंसिल हो गया, तो वी विल लेफ्ट विथ ओनली 36 दैट इज 36 जूल। और इन्फिनिटी का तो 0 है, तो इसलिए केवल जो है 10 सेंटीमीटर सेपरेशन पर जो एनर्जी होगा वही जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो डेट इज 36 जूल आंसर। तो ये प्रॉब्लम जो है ये 61 प्रॉब्लम नंबर 61 जो है का आंसर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 36 जूल। अब ये प्रॉब्लम जो ये पार्ट जो है समाप्त होता है इसी के साथ, दिस पार्ट इज कंक्लूडेड। वी विल मेट इन द नेक्स्ट पार्ट, एटलीस्ट two parts are needed, will be needed, because total problem in this chapter is 75 and we have completed problem up to problem 61. Thank you very much.